Hello dear student, this is Yasir Azam from Team LPS Sitapur. Today I am going to continue the lecture from the chapter Heat. This is the third part of the chapter Heat. Two videos have already been uploaded. You can watch through the channel Learn with Science with Yasir Azam. I have uploaded it on YouTube so that again and again you can see the video without losing much data. And you can watch it from any phone, anywhere. If wherever you are, you can learn from the videos. Okay, so in this chapter, the third part will consist of flow of heat and radiation. What is flow of heat? You have understood what is heat. It is a form of energy which was used to change the shape, which was used to change the state of matter. Now we will study the flow of heat. How does heat flows from one place to another? For example, if I am making a cup of tea, I am using pan. So in that I have transferred the heat from gas knob and then lighted that burner from there to pan. Similarly, if I am I'm making tea, so pan to water it reached. Now in within the water how it is moving. So there are different processes for different kind of matters. For example, if we talk about solid, the heat travels through conduction. In case of liquid and gases, the heat travels through the process of convection. Very minor differences there. In case of conduction, beta, there is no movement of the molecules. Means अगर आपने पैन में कुछ बनाया है, इफ यू आर हीटिंग समथिंग इनसाइड अ पैन, तो ऐसा नहीं कि पैन के मॉलिक्यूल नीचे के ऊपर आ गए, ऊपर के नीचे आ गए. Pan was as it is, the molecules present between them was transferring heat from one point to another. Previous video I had given you example of this particular scale or a metal object attached with a candle. The heat was transferring. ऐसा नहीं कि यहाँ का पार्ट यहाँ पे आ गया. Only the heat got transferred from one point to another. This occurs in metal. This is example of conduction. So what is conduction? The flow of heat without the movement of the substances. Now for conduction there must be condition. The condition is the substance must be good conductor of heat. Means not every substance, like if you take a piece of wood, you start heating one place of the wood, it will keep on heating and energy will remain there. No transfer of energy will occur. Instead of that, if you take a iron rod, start heating from one end and you will not be able to catch another end after 2 or 3 minutes. Why? Because the heat got conducted or conduction occurred from one point to another, which resulted in heat up of that particular rod. So ultimately what we come to know? We come to know that the substances which can conduct heat are called as conductors. Best example is, best conductor is silver, but example we can take from our general utensils of kitchen like aluminium, copper. Okay. Now coming to insulator. What is insulator? Insulate means something which could not pass the heat. We wear the sweater in winters, we wear jacket to insulate our body. Okay. Insulation means protecting ourselves from getting external air. चाहे वो ठंडी हो चाहे वो गर्म, हम इंसुलेट करते हैं, खुद को एक फिक्स टेम्परेचर रखते हैं. लेकिन यहाँ पे जो इंसुलेटर का मतलब है वो ये है कि हीट कुड नॉट ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन पर्टिकुलर सब्सटेंस. फॉर एग्जांपल सबसे अच्छा एग्जांपल वुड है. इन वुड हीट डू नॉट गेट ट्रांसफर. हमारा इंसुलेटर हीट में हीट एज अ इंसुलेटर, वुड एक बहुत अच्छा इंसुलेटर है, उसमें इंसुलेशन होता है. नाउ अगली बात करते हैं कन्वेक्शन की. अभी तक तुमने ये पढ़ा कि कंडक्टर्स में सब्सटेंस मूव नहीं कर रहा है, मगर जब हम बात कन्वेक्शन की करते हैं तो पूरा का पूरा सब्सटेंस ही मूव करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप खीर बनाने लगे तो व्हाट यू विल सी कि खीर का एक पार्ट एक जगह बॉयल हो रहा है, दूसरा पार्ट बॉयल हो रहा है. इसके बाद जो गर्म आपका हीट क्या बोलेंगे उसको, खीर एक चम्मच आप निकालें, उसके बाद उसको नॉर्मल मिल्क के साथ ऐड कर दें, तो आप देखेंगे मिल्क के डिफरेंट पार्ट्स फौरन ही गर्म हो गए. ठीक है, क्योंकि हीट कंटिन्यूअसली फ्लो कर गई. मैं अच्छा सा एग्जाम्पल नहीं दे पा रहा हूँ, कुछ अच्छा एग्जाम्पल बात करते हैं. कन्वेक्शन का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने किसी बर्नर पे रख दिया, नाउ इट इज गेटिंग हीटेड अप. जो मॉलिक्यूल यहाँ पे वो हीट होने के बाद लाइटर हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर का ठंडा मॉलिक्यूल नीचे की तरफ आएगा. ये प्रोसेस लगातार होता रहेगा. दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन. मीन्स in which when we provide heat, means in case of liquids and gases, the flow of heat occurs random. Means the substance loses its place and keeps floating from one place to another in particular medium. This is how convection occurs. So differentiate between conduction and convection. Very easy. Conduction needs, in conduction there is no movement of the substance. Whereas in case of convection there is movement of substances. Conduction example metal.
Convection example, liquid and gases. अब now difference between insulator and conductor बहुत आसान है. The substance which conduct the heat through them are called conductors. Insulator do not allow heat to pass through them. Okay. Now इतना तो आप समझ गया है. अब how we apply convection. Convection plays very important role in our day-to-day life. We could understand it by land breeze or sea breeze. हम लोग कहाँ पे रहते हैं? घरों में रहते हैं, कंक्रीट पे रहते हैं, ये ना कहना समुद्र में रहते हैं. लेकिन सपोज अगर हमारा घर किसी सी बीच के किनारे है तो व्हाट विल हैपन? दिन में हम लोग टहलने जाते हैं, लोग सी बीच जाते हैं, जुहू जाते हैं, ठंडी ठंडी हवा खाते हैं. हाउ दे आर गेटिंग दैट कोल्ड एयर? सो लेट मी मेक अ कॉन्सेप्ट क्लियर. जो बिल्डिंग्स होती हैं, दिन में सनलाइट इज फॉलिंग ऑन दैम, दे बिकम वेरी हीट, हॉट अप, दे गर्म हो जाती हैं बिल्डिंग्स. गर्म होने की वजह से दे रेडिएट हीट. रेडिएट हीट मतलब इमिट्स हीट, ऐसे समझ लें, अपने अंदर से गर्मी को निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी. तो जो हीट निकलती है तो आसपास की हवा को, एयर को वार्म अप कर देती है, गर्म कर देती है. और जैसे ही एयर वार्म अप होती है, इट बिकम लाइटर. लाइटर होने की वजह से वो राइज अप होती है, यानी ऊपर की तरफ आ जाती है. तो जब यहां से हवा ऊपर की तरफ चली गई तो स्पेस खाली हो गया. तो यहाँ पे एक रूल लगता है, द मूवमेंट ऑफ एयर वो किधर होता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ. यहां पर चला गया हवा ऊपर, इतनी जगह खाली हो गई, यहाँ पे क्रिएट हो गया लो प्रेशर. नाउ सी की तरफ तो हाई प्रेशर है क्योंकि ठंडा है, कूल है. कूल क्यों है? रात में कहानी बदल जाएगी. दिन में कूल क्यों है? क्योंकि जो कंक्रीट मटेरियल बिल्डिंग्स का है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, जबकि जो सी वाटर है वो देर से गर्म होता है और देर तक गर्म रहता है. तो यहाँ पे हुआ क्या भाई? यहाँ से तो हीटअप हुआ, ऊपर चला गया, स्पेस क्रिएट हो गया. सो हाई प्रेशर से लो की तरफ एयर आ गई. तो दिन में तो ठंडी हवा चलने लगी, पर जब रात हुई, शाम हुई, तो क्या हुआ? पानी देर से गर्म होता है, देर तक गर्म रहता है. तो रात में बिल्डिंग तो ठंडी हो गई फौरन, रेडिएंट एनर्जी की वजह से रेडिएट हो गई हीट. अब वो ठंडा हो गया. उल्टी कहानी चलेगी, अब लैंड की तरफ से सी की तरफ हवा चलने लगेगी. बस जिस डायरेक्शन में हवा चलेगी हम वैसी ब्रीज उसको बोल देंगे. सो लैंड ब्रीज क्या है? द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम लैंड टू, सॉरी फ्रॉम, मैंने गलत लिख दिया है, फ्रॉम सी, सही लिखा है, फ्रॉम सी टू लैंड इज कॉल्ड लैंड ब्रीज. सी ब्रीज क्या होती है? फ्रॉम लैंड टू सी, जिसकी तरफ जाएंगे वो ब्रीज होगी. बात समझ रहे हैं? जैसे मैं सी की तरफ हवा जा रही है तो वो सी ब्रीज है, लैंड की तरफ हवा जा रही है तो वो लैंड ब्रीज है. बहुत आसान था, समझ में आ गया होगा. ओके, सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह. नाउ नेक्स्ट इज रेडिएशन. पूरा चैप्टर फिनिश हो गया. नाउ लास्ट पॉइंट इज रेडिएशन और द कलर ऑन विच दीज रेडिएशंस डिपेंड. द सोलर एनर्जी फ्रॉम सन कम्स टू अस विदाउट एनी मटेरियल मीडियम. अभी तक हमने बात करी कंडक्शन और कन्वेक्शन की. तो बच्चा, कंडक्शन में हमें सॉलिड मटेरियल चाहिए था या मेटल्स चाहिए थे. कन्वेक्शन में वी नीडेड गैस, एयर और वाटर. बट इन केस ऑफ रेडिएशन हमें कोई जरूरत नहीं होती है. आप एक शीशे का बॉक्स बना लें, मेक अ बॉक्स ऑफ ग्लास, you will see the sunlight will be able to pass through that glass without any material medium. So what is radiation? The flow of energy without any material medium is called radiation. Best example is sun. Sun radiates the energy. From sun light comes in the form of radiant energy, that is called radiation. अब रेडिएंट एनर्जी डिपेंड करती है आपके टाइप ऑफ कलर पे. अगर आप व्हाइट कलर की शर्ट पहनेंगे तो आपको बहुत कम गर्म लगेगा क्योंकि दैट रिफ्लेक्ट्स एंटायर हीट. ब्लैक कलर की शर्ट पहन के बाहर जाएं या गाड़ी बहुत देर से धूप में खड़ी हो, जाके गद्दी पे बैठ जाएं और ब्लैक कलर की गद्दी हो तो कितना अच्छा लगता है, थोड़ी देर में मजा आ जाता है. क्यों? क्योंकि उसने सारी हीट को एब्जॉर्ब कर रखा था. इट विल गिव यू अ शॉक, आप हट जाएंगे वहां से. लेकिन एक कंट्रोडिक्टरी बात हमेशा याद रखें, ब्लैक कलर बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है और सारे कलर एब्जॉर्ब कर लेता है और बहुत अच्छा वो है, गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट है. उसी के साथ साथ बेस्ट रेडिएंट ऑफ हीट भी है. जितनी जल्दी वो गर्म होगा उतनी जल्दी वो ठंडा भी हो जाएगा. इस वजह से पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. ब्लैक कलर से वो समझते हैं हीट अप, जितना जल्दी वो एब्जॉर्ब करेगा उतना ही जल्दी वो इमिट भी कर देता है. दैट इज व्हाई ब्लैक कलर इज आल्सो कॉल्ड एज बेस्ट रेडिएंट. हम सोलर कुकर की बात करते हैं. यू सी इन सोलर कुकर वी आर हैविंग वन ग्लास पैनल and utensils which are polished black from outside. Why? Because black color absorbs the most of radiant energy. As a result, the temperature becomes higher. ग्लास पैनल लगाते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से, जिसकी वजह से भी हीट उस पर्टिकुलर एरिया में बढ़ जाती. This was all about the chapter. Certain activities have been given in your book that you have to acknowledge, you have to understand
what these activities want to say. कंडक्शन के एग्जाम्पल में आप डेली यूज में सबसे अच्छा एग्जाम्पल यूज ऑफ कुकर देख सकते हैं. हमारी मदर कुकर में दाल बनाती हैं, सब्जी बनाती हैं, तो वाई वी आर यूजिंग कुकर, बिकॉज दैट इज अ मेटल कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर. और उसके अंदर जो हम चलाते हैं चम्मच से, समटाइम वी यूज वुडन स्पून्स. वाई? बिकॉज दिस इज वेरी बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इंसुलेटर, तो वो गर्म नहीं लगेगा, हमें उसे आराम से यूज कर सकते हैं. दैट इज वाई वी आर यूजिंग इंसुलेटेड स्पून्स. या जो हमारे जो भी यूटेंसिल्स हैं लाइक कुकर आई एम टॉकिंग अबाउट, उसमें जो स्टैंड होता है दैट इज मेड अप ऑफ बेकेलाइट प्लास्टिक विच इज इंसुलेटर, तभी तो हम उससे पकड़ पाते हैं. वरना अगर वो ना हो और आप उसको सीधे ऐसे पकड़ें तो जल जाएंगे. लेकिन वो इंसुलेशन का काम करता है और आपको हीट शॉक से बचाता है. Chapter is finished. Chapter was very interesting. Very small chapter it is, but you need to read twice, thrice. बार बार देखिए वीडियो, बार बार चैप्टर को पढ़िए. आपके पास बहुत सारा टाइम है, उसको बहुत अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं. इन क्लास अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, समटाइम यू डोंट आस्क, यू हेजिटेट इन आस्किंग, बट इन वीडियो यू नीड नॉट टू हेजिटेट. यू कैन मेक अस बैक, यू कैन रन अस ऑन योर फिंगर, you can continuously see the chapter again and again. And if you are confused, we teachers, Team LPS is always there to help you out. Keep asking the question. God bless you. Thank you everyone.